class. Now we are studying our chapter number 7, control and coordination. In first part we have already studied about the different type of movement that animals show and different type of things that we are studied in our previous videos. Now we already read it about the humans, that how humans responds to and what are the organs which helps them to make control and coordination. We had talked about brain. Now we are going to talk about the plants and how plants show their coordination and control on them. What are the different types and what are the things by which plants show response to something. First we are going to study about the immediate response to stimuli. We have already read it about in our previous video about the humans, that how humans respond to some stimuli like hot, cold, humid and other thing. In like that the plant also responds to some type of stimuli. Like that you have seen the plant which is known as touch me not plant. When you touch that leaf of that plant, the plant get closes. It is the type of a response that plants show towards the touching anything, towards the touching its leaf. That type of response is known as immediate response to stimuli. For this they have a electrical chemicals that are present in the plants, which immediately responds to the thing which is around them, which shows some type of response towards the things like that. When we touch that plant, with the plant leaves get closes, and that is known as the electrical chemical process that they use to convey information from one tissue, one cell to the another cell. So that type of a thing is known as they use the electrical chemical processing. After that our next is a movement due to growth. Movement due to growth is according to that plant grows some according to, when you see the different type of plants, some plants are bended towards the sun and some are bended away from the sun. This type of the movement that plant shows is known as under the movement due to the growth. First we are going to talk about the tendrils. Tendrils you have already studied, that you have talked about the money plant. Money plant, you can see that money plant grow with the help of some support. They grow on the supportive thing. Just like that many plants have tentacles which grow with the other which take the support of other things around them and grow then, and some plant also roll around some things to grow over them. This type of tentacles they show, these are the different growth the plant shows, which have some type of a sensitive touch. They have sensitive touch, and tentacles also support that a contact and the object of a grow rapidly towards the tendrils away from the object. Tendrils also circle around the object and thus cling to be it. It always show the directional plant always show a one directional growth. They grow only in a one direction according to the particular thing. We are going to study about that particular direction. Plants shows always a particular direction, or this direction also known as a tropic. We can say direction or a tropic. This direction and tropic have the plant mostly we can say that they show a particular direction to growth of a particular direction. After that it is a phototropic movement. Phototropic movement means that we have already studied about photosynthesis. Like that, photo means that response of the plant towards the light of the sun or light of the another thing that shows some type of growth towards the thing. In phototropic movements only the two part of the plant shows the movement, like shoot and root. Only the shoot and root of the part of the plant shows the phototropic movement. They grow towards and they grow downwards. When we talk about the shoot always grow upwards. That's why the branches always grow to upwards and they become the tall plants. And the root always moves towards the down. They grow towards the down. That's why the roots are present under the soil and they grow very deeply under the soil. So when we talk about the roots always grow downwards and shoot always grow upwards. There are another two terms also. There is hydrotropism and chemiotropism. Hydrotropism and the chemiotropism, the name suggested, hydro means the any plant which grow in the water, or the plant which shows their movement towards the plant towards the water. That type of plant are known as hydrotropism plant. Chemiotropism plant means the plant sometimes the plant shows some response towards the chemical, some type of a specific chemical which are present in them or around them or towards the different things. So they show a chemiotropism. This type of thing, chemiotropism, okay, these are the different movements we have read about the plants, that they show a phototropic movement. Phototropic movement is always shown by the shoot and roots.
shoot always move downwards and roots always move downward and shoot always move upward. Hydrotropism and chemotropism, when a plant shows response towards the water, then it is hydrotropism. When it shows some type of response towards the different chemicals, that is chemotropism. After that, there is some type of new thing is invented, that we should always give a electrical impulse in the plant so that they can transfer their information from one cell to another cell. But this electrical impulse is have some type of limitations, that we cannot use the electrical impulse, or because it has limitation. What limitation it has? It always work only in one cell. When a one cell in transferring the knowledge information to the another, it take the time, but it does not provide all information to all the cell of the plant. That is the first limitation. Second limitation is that the plant is the information they used is not proper to all the plants. They have to use some different type of things by which they can provide the information. This is generated electrical machine that are transmit when the cell and the cell transmit the information to the other cell, then the rest of the mechanism will be generated, which takes some time, which generate a new impulse, which does not provide a proper information to a plant. That's why this electrical impulse has a different type of it has the limitations. So to overcome this type of limitation, there is a chemical communication between the cells of a plant. अब हम लोगों ने ये पढ़ा कि इमीडिएट रिस्पॉन्स शो करते हैं प्लांट. हमने टच मी नॉट के प्लांट के बारे में पढ़ा है. टच मी नॉट प्लांट में क्या होता है, जब आप उसको टच करते हो तो उसकी लीफ क्लोज हो जाती है. तो ये उसका लीफ को क्लोज करने का जो सिस्टम होता है जिससे वो लीफ क्लोज करती है, वो हमारे किस वजह से होता है, इलेक्ट्रिकल केमिकल के वजह से होता है. इलेक्ट्रिकल केमिकल जो प्लांट के अंदर रिलीज होता है जब हम उसको टच करते हैं, तो इलेक्ट्रिकल केमिकल सेल्स को इंफॉर्मेशन वो रिलीज करता है जिससे कि वो प्लांट अपने आप को क्लोज कर लेता है. तो इस टाइप से प्लांट रिस्पॉन्स शो करते हैं. सेकेंड जो होते हैं वो ग्रोथ के अकॉर्डिंग शो करते हैं. सबसे पहले हमारे पास टेंड्रिल्स आती हैं. टेंड्रिल्स में क्या होता है कि आपने मनी प्लांट वगैरह के बारे में पढ़ा होगा कि मनी प्लांट क्या करते हैं कि एक सपोर्ट के साथ ग्रो करते हैं. बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको एक सपोर्ट चाहिए होता है, तो उस सपोर्ट के साथ ही वो ग्रो करते हैं. और ग्रो करके क्या करते हैं, उस सपोर्ट के अराउंड राउंड बन जाते हैं. तो ये उनका एक मूवमेंट है जो कि वो ग्रोथ है, जो कि वो किसी चीज़ के थ्रू शो करते हैं. उसके अलावा प्लांट जो होते हैं वो हमेशा डायरेक्शनल ग्रोथ शो करते हैं, यानी कि वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ही मूव करेंगे, ग्रो करेंगे. उसको हम ट्रॉपिक भी बोलते हैं. फोटोट्रॉपिक मूवमेंट प्लांट शो करते हैं. फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, जब प्लांट किसी लाइट के अकॉर्डिंग या किसी चीज़ की तरफ ही अपना मूवमेंट शो करते हैं, चाहे वो लाइट हो, ग्रेविटी हो, केमिकल हो, वाटर हो. तो डिफरेंट टाइप की थिंग्स होती हैं जिसमें कि प्लांट अपना रिस्पॉन्स शो करते हैं, अपनी ग्रोथ उनकी तरफ शो करते हैं. प्लांट में मेनली जो ग्रोथ शो करते हैं वो होते हैं रूट एंड शूट. शूट एंड रूट जी ही दो पार्ट होते हैं प्लांट के जो कि ग्रोथ शो करते हैं. रूट जो होता है वो हमेशा डाउनवर्ड, आपने देखा होगा कि रूट जो होती है वो हमेशा सॉइल के नीचे की तरफ ही मूव करती हैं, यानी कि वो डाउनवर्ड ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं. शूट्स जो होती हैं वो हमेशा अपवर्ड यानी कि स्काई की तरफ, लाइट की तरफ ही मूव करती हैं. तो ये उनकी डिफरेंट ग्रोथ होती हैं जो कि रूट और शूट शो करते हैं. रूट हमेशा डाउनवर्ड होगी, शूट हमेशा अपवर्ड होगी. उसके बाद हमारे दो वर्ड और आते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड केमियोट्रॉपिज्म. हाइड्रो का मीन्स क्या होता है, वाटर. जब कोई भी प्लांट या तो वाटर में जो प्रेजेंट है वो वाले प्लांट, या फिर कुछ प्लांट किसी वाटर की तरफ अपनी ग्रोथ शो करते हैं तो वो हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाते हैं. और कुछ प्लांट जो कि केमिकल की तरफ रिस्पॉन्स शो करते हैं, केमिकल की तरफ ग्रो करते हैं किसी टाइप के केमिकल के अकॉर्डिंग, तो उनको केमियोट्रॉपिज्म कहते हैं. उसके बाद सेकंड चीज इसमें ये डाली गई थी कि इलेक्ट्रिकल, क्यों ना हम ऐसा करें कि हम प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर दें. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करने से का क्या आइडिया था, ये आइडिया था कि ताकि प्लांट्स जो हो सकें वो ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकें. लेकिन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में क्या लिमिटेशन हुआ कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अगर हम डाल देते हैं प्लांट्स में, अगर हम इसको जनरेट कर देते हैं, ये एक्सीलेंट आइडिया है बट इसकी लिमिटेशन है. फर्स्ट क्या है कि जितने भी सेल में, अगर हम किसी एक सेल में पर्टिकुलर टिश्यू में कोई इन्फॉर्मेशन हम डाल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर रहे हैं, तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर टिश्यू से ही मूव करेंगी. उस टिश्यू के अलावा या फिर जो सेल उससे कनेक्टेड है, जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड है, उस तक ही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगी, बाकी सेल को इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाएगी. ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी. सेकंड लिमिटेशन इसकी क्या थी कि जब हम किसी भी सेल को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करेंगे, तो एक सेल उसको ट्रांसमिट करेगा, और जैसे ट्रांसमिट करेगा तो हो सकता है उसके रिस्पॉन्स में कोई और सेल किसी और इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर दे. तो इस तरीके से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं होती. तो इसलिए जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का आइडिया था वो बिल्कुल भी सही
नहीं था। लेकिन इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया गया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, तो इनके अंदर इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर इनके सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ये किस तरीके से ग्रो करेंगे। इसीलिए इनमें आया था, नेक्स्ट आया था केमिकल कम्युनिकेशन। केमिकल कम्युनिकेशन में क्या हुआ कि केमिकल कॉम्बिनेशन जो था ये एक स्लो प्रोसेस तो था, लेकिन ये एक अच्छा प्रोसेस था कि इसमें क्या होता है कि जब सेल किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन रिलीज करता है तो वो प्लांट के सारे पार्ट्स तक पहुंचती है और वो सारे पार्ट उसको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं, पूरे ओरिजिनल सेल तक पहुंच जाती है। स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि इनके सरफेस पे पाए जाते हैं, जो कि मतलब थोड़ी स्लो तो वर्क करते हैं लेकिन इनकी पोटेंशियल बहुत अच्छी होती है और अच्छे से ग्रो करते हैं। उसके अलावा क्या किया गया था, डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी भी यही शो करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट था प्लांट हार्मोन्स। अब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की चीज़ों को, मतलब प्लांट्स में ग्रोथ को इंड्यूस करने के लिए उसके फ्रूट को, सीड्स को, ट्रीज को, मतलब ब्रांचेस को, रूट्स को, इन सब के लिए क्या किया गया था कि प्लांट्स में कुछ हार्मोन्स पाए गए थे कि प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं जो कि प्लांट को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, डेवलप करने में, उनका न्यूट्रिशन लेने में, उनके बीच में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बना के रखने में। तो ये हार्मोन कौन कौन से थे जो प्लांट में पाए जाते हैं? सबसे पहले आता है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है कि जो कि प्लांट में पाया जाता है। ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है, ये प्लांट को ग्रो करने में, यानी कि उनको बड़ा करने में। जब एक सीड से एक प्लांट धीरे धीरे ग्रो करके पूरा ट्री बनता है तो उस पूरे में सबसे मेन रोल किसका होता है? ऑक्सिन का होता है। तो ऑक्सिन हार्मोन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट की ग्रोथ के टाइम पे। इसका जो काम क्या होता है, एक तो ये सेल को ग्रो करवाता है और मेनली जो ऑक्सिन हार्मोन होता है वो हमेशा शूट पार्ट जो होता है प्लांट का वहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि जो शूट पार्ट है प्लांट का वही सबसे ज़्यादा ग्रो होता है, वही आगे जाके ब्रांचेस से पूरा आगे जाके लीव्स वगैरह सब ग्रो करते हैं, तो ये शूट पार्ट में पाया जाता है। और क्या होता है कि ये हमेशा लाइट की तरफ ही अपना जो होता है, वन साइड अगर प्लांट पे लाइट आ रही है तो ये उस साइड पे मूव नहीं करके कौन सा होगा, जैसे कि अगर सपोज एक प्लांट है वो सनलाइट की तरफ मूव कर रहा है तो ये जो होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है, यानी कि शेडी पार्ट में ये वर्क करता है। तो हमें हमेशा से लगता है कि जो प्लांट है वो किस तरफ मूव कर रखा है, किस तरफ बेंड हो रखा है, सन की तरफ या लाइट की तरफ वो बेंड कर रखा है। तो ये इसका होता है प्लांट की अपीयरेंस कैसे आ जाती है, बेंड टूवर्ड्स द लाइट, वो लाइट की तरफ बेंडेड है, ऐसा शो करता है। क्योंकि ये क्या है, जब प्लांट जब लाइट की तरफ रिस्पॉन्स करता है तो ये शेडी एरिया की जो शूट है उस पर ग्रो करता है, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन भी हमारा जो है वो ग्रोथ करता है, लेकिन किसकी, स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। उसके बाद साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होता है ये मेनली वर्क करता है जब सेल डिवीजन होता है। प्लांट के अंदर भी बहुत टाइप का हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा होगा, अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन माइटोसिस, मियोसिस टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। तो सेल डिवीजन जो होता है वहाँ पे सबसे पहले जो वर्क करता है वो कौन सा हार्मोन होता है, साइटोकाइनेस हार्मोन होता है। ये पर्टिकुलरली सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, यानी कि सेल को डिवाइड होने में मदद करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेल डिवाइड हो और प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ये 3 हार्मोन तो हमारे पास ऐसे हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं। लेकिन अगर प्लांट में ऐसे ही हार्मोन होंगे जो उसको बढ़ाते ही जाएंगे तो प्लांट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इतनी रिक्वायर्ड नहीं, मतलब क्या पता चल रहा है कि प्लांट ऐसे बहुत ट्री लंबे होते जा रहे हैं, लेकिन इस ग्रोथ को रोकने के लिए कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद प्लांट की ग्रोथ रुकना जरूरी होती है, इसके लिए ही उसमें कुछ हार्मोन्स और पाए जाते हैं। वो जो हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। पर्टिकुलरली जब प्लांट अच्छे से मैच्योर हो चुका है, ग्रो हो चुका है, वो ट्री बन चुका है, तो अब उसको ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे जो होता है एब्सिसिक एसिड वर्क करता है। एब्सिसिक एसिड जो हमारा हार्मोन है ये वर्क करता है और ये प्लांट की ग्रोथ को रोक देता है, वहीं पे स्टॉप कर देता है। तो ये था, तो बहुत सारे टाइम पे आपने देखा होगा कि ट्रीज होती हैं उनकी लीव्स गिरना शुरू हो जाती हैं, तो ये लीव्स गिरना, ट्री की लीव्स का येलो होना, ये सब किस वजह से होता है, एब्सिसिक एसिड की वजह से होता है कि वो उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देता है। तो जैसे ही ये ग्रोथ को स्टॉप करेगा, सेल से क्या है, लीव्स तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेगा, तो वो क्या करेंगी, शेड हो जाएंगी। ओके, तो ये इतना हमने पढ़ा प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में हार्मोन कौन कौन से पाए जाते हैं। 4 हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोसिन, जो तीनों की प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं। एब्सिसिक एसिड जो कि प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, कंफ्यूज मत होना, एब्सिसिक एसिड हमेशा प्लांट की ग्रोथ को रोकेगा, ठीक है, प्रमोट नहीं करता। बाकी तीनों क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं।
ओके अब हमारा नेक्स्ट आता है एनिमल हार्मोन्स, जैसे कि ह्यूमंस और एनिमल्स में भी कुछ हार्मोन्स पाए जाते हैं। हम कुछ हार्मोन्स के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी को भी क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, हमें भी ग्रोथ की ज़रूरत है। हम भी क्या करते हैं, आपने देखा होगा एक न्यूबॉर्न बेबी से फिर डेवलप हो के पहले चाइल्ड बनता है, फिर अडल्ट, टीनेजर, फिर एडल्ट, फिर ओल्ड, तो ऐसे करके हमारी बॉडी में भी ग्रोथ होती रहती है। तो ये जो डिफरेंट टाइप की ग्रोथ होती है, डिफरेंट टाइप के चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, ये सारे चेंजेस कुछ हार्मोन्स की वजह से होते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन पाए जाते हैं। हमारी बॉडी में जितने भी हार्मोन पाए जाते हैं वो मेनली किस में आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं जो कि हमारे हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में बहुत सारी डिफरेंट टाइप की ग्लैंड्स आती है जो पर्टिकुलर अलग अलग टाइप का एक ग्लैंड अपने ही स्पेसिफिक टाइप का हार्मोन रिलीज करती है, उसको इंड्यूस करती हैं, उसको ग्रो करवाते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी ग्रो करती है। सबसे पहले हमारा आता है ये सारे हमारे किस में आते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड में आते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एड्रेनलिन। एड्रेनलिन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। एड्रिनल ग्लैंड, इसका मेन काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी में किसी भी टाइप की जो मूवमेंट होती है कि हमें किसी फेयर को रजिस्ट करना है, किसी हंटिंग करना है, हंगर वंगर, ये सारी चीज़ें जितनी होती हैं, हार्ट बीट हमारी फास्ट होती है, ऑक्सीजन की हमें कितनी ज़रूरत है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कैसा वर्क कर रहा है, बाकी चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप का होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड की वजह से एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो एड्रिनल ग्लैंड में ग्रो करती है, एड्रेनलाइन। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट हार्मोन जो आता है वो है हमारा नेक्स्ट हार्मोन थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन क्या है, इसको आप बहुत इजीली लर्न कर सकते हो कि इनके जो ग्लैंड के हार्मोन के नेम होते हैं वो उनकी ग्लैंड पे ही होते हैं। ठीक है, तो आपके अगर एग्जाम में आ जाता है कि विच ग्लैंड सिक्रीट द एड्रिनल ग्लैंड, योर आंसर इज द एड्रिनल ग्लैंड। थायरोक्सिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, थायराइड ग्लैंड। तो ये आपको लर्न करना है, ये आपके एग्जाम के उस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी ग्लैंड हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में आती है और क्या क्या वर्क करती हैं। सेकेंड हमारा थायरोक्सिन आती है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो थायराइड ग्लैंड होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में आपने सुना होगा कि हमें बोला जाता है कि हमें हमारे फूड में, यानी कि हमारा जो सॉल्ट, आप नमक जो खाते हो उसमें आयोनाइज्ड नमक ही हमें खाना चाहिए, यानी कि ऐसा नमक जिसमें आयोडीन होना चाहिए। आयोडीन क्यों ज़रूरी होता है, वो हमारे इस थायरोक्सिन हार्मोन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। यानी कि अगर आप सॉल्ट, अगर आयोडीन ले रहे हो तो वो आपकी थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करता है, हेल्प करता है आपकी बॉडी में रहने के लिए। थायराइड ग्लैंड होता है, अगर आपने सुना होगा कई बार क्या होता है, अगर कोई भी इंसान प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट में आयोडीन नहीं लेता है, सॉल्ट नहीं खाता है, तो आपने देखो कि एक डिजीज़ होती है जिसमें कि अपना नेक एरिया होता है वो स्वेल हो जाता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है, जिसको गॉइटर डिजीज़ बोलते हैं। गॉइटर डिजीज़ कहाँ होती है, थायराइड ग्लैंड में होती है। और इसमें क्या होता है कि हमारा जो मतलब एक पर्सन को जिसको गॉइटर डिजीज़ है उसकी पूरा नेक जो है वो एकदम स्वेल हो जाता है, बहुत ज़्यादा फूल जाता है। तो वो क्यों फूलता है, क्योंकि उस पर्सन में आयोडीन की कमी होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे ग्रोथ हार्मोन। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है ग्रोथ हार्मोन, जो कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। आपकी हाइट को ग्रो करना, वेट को ग्रो करना, ये सारा क्या है, हमारा ग्रोथ हार्मोन का काम होता है। ग्रोथ हार्मोन को कौन सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी जो होती है वो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो कि ग्रोथ करने में हमें हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे हार्मोन आते हैं टेस्ट्रोजोन एंड ऑजिस्ट्रोजोन। टेस्टोस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन एंड ऑजिस्ट्रोस्टेरोन, ये क्या होते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स में पाए जाते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो मेल्स में पाए जाते हैं, ऑजिस्ट्रोस्टेरोन जो होते हैं वो फीमेल्स में पाए जाते हैं। टेस्ट्रोजोन जो टेस्टीज होती हैं मेल में, वो इसको सिक्रीट करती है। ऑजिस्ट्रोजोन जो होते हैं इसमें और भी हार्मोन्स होते हैं, एजिस्ट्रोजोन, ऑजिस्ट्रोजोन, प्रोजेस्टेरोन्स, ये डिफरेंट टाइप के जो हार्मोन्स हैं वो किस में सिक्रीट होते हैं, फीमेल्स में सिक्रीट होते हैं, जो कि ओवरीज के थ्रू रिलीज किए जाते हैं। इनको ओवरीज जनरेट करती है और इनको टेस्ट्रोजोन जो होते हैं वो मेल्स में होते हैं, टेस्टीज में जनरेट होते हैं। ऑजिस्ट्रोजोन जो होते हैं वो फीमेल्स में होते हैं, ओवरीज इनको सिक्रीट करती है। ओके, हमारा उसके बाद आता है इंसुलिन। इंसुलिन जो हार्मोन है वो पेनक्रियाज रिलीज करते हैं। इंसुलिन का आपने सुना होगा कि बहुत बार आजकल काफ़ी कॉमन है कि हमारे जो पर्सन, मतलब फैमिली में जो एडल्ट हैं, बड़े लोग जो हैं, उनमें कई बार डॉक्टर उनको बोलता है कि आपको शुगर नहीं लेनी है। तो वो उनको क्यों बोलता है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो है इंसुलिन की बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाती है। उनका जो ब्लड लेवल है, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है या फिर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऐसे पर्सन को डायबिटिक भी बोला जाता है, डायबिटीज़ कहा जाता है उसमें
उस बीमारी को। तो इंसुलिन जो उनके सिक्रीट हो जाते हैं, पैनक्रियास सिक्रीट करता है, तो इससे क्या होता है, इसकी कमी की वजह से या इसके बढ़ने की वजह से ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। उस शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा शुगर लेवल इंक्रीज हो गया है, तो इंसुलिन के इंजेक्शंस उनको दिए जाते हैं ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखा जा सके। ठीक है, तो इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास सिक्रीट करते हैं। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपका काम है कि जितने भी वीडियोस में जो भी ब्लैक बोर्ड पे जो नोट्स लिखे हैं, आपको वो नोट्स प्रॉपर तरीके से आपकी नोटबुक में लिखने हैं ताकि आप जब भी चैप्टर रीड करो आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट जो है पेज नंबर 125 में आपकी एक टेबल दे रखी है एक्टिविटी 7.4 पे, सम इम्पॉर्टेंट हार्मोन एंड देयर फंक्शन। ये टेबल भी आपको अपनी नोटबुक में बनानी है ताकि आपको हार्मोन्स बहुत अच्छे से लर्न हो जाए कि कौन सा हार्मोन क्या काम करता है और किस चीज़ को सिक्रीट करता है। ओके, तो इसके साथ अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। क्वेश्चन आंसर आपको PDF में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और इस चैप्टर को प्लीज़ आप एक बार सेल्फ स्टडी ज़रूर करें, खुद एक बार ज़रूर रीड करें। थैंक यू।